इधर इधर सर इधर सर इधर बैकड्रॉप उधर प्लेन बैकड्रॉप सर सब जगह देखो सर इधर 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 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ वेरी गुड लाइन है 20 से स्टार्ट राइट टर्न फुल राइट सर इधर भी ऐसे फुल लेफ्ट हाँ बैकड्रॉप जितेंद्र जितेंद्र अरे पीछे हटो ये धर्मेंद्र अभी इधर देखिए राइट 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 हाँ भैया भाई हाँ चला क्या चला अरे कीकू भाई के साथ नहीं है। बुला टीकू भाई को बुला इधर अरे टिंकू नहीं कीकू सर राइट से आपके राइट से आपके लेफ्ट में आपके लेफ्ट यहाँ पे राइट सेंटर सर सेंटर थोड़ा क्लोज सेंटर भी देखो ओके सेंटर दिस वन फर्स्ट इधर 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 सामने मुझे अलग से बोला कि क्या फायदा होगा ओके राइट गाइस दिस नाउ धीरे धीरे आपके सेंटर सेंटर धीरे धीरे से ले सेंटर हियर दैट्स नॉट सेंटर बट स्टिल या थैंक यू अभी आप थैंक यू यस अरे वो distance आपके में- लेफ्ट से स्टार्ट करो मैडम इधर मैम हियर एक रुकिए आप इधर देखिए सेंटर में देखिए ना मैम इधर लेफ्ट मैम हियर लेफ्ट मैम हियर तो लेफ्ट बोल रहा है राइट बोलना फिर मैं मेरा सेंटर दे अच्छा ये अपना सेंटर बोल रहा है एक मिनट अभी रुकिए मैम हियर मैम यहाँ मैम हियर मैम हियर डन एक सेकंड मैम मैम हियर हाँ हाँ हटा बस साथ में साथ में भाई कीकू को बोला ना इधर देखो लुक सही इधर सामने आपके राइट में बहुत हो गया अच्छा ये होते हुए इधर देखो। सर इधर से सर इधर टर्न लीजिए हाँ रुकिए अभी इधर सर इधर सर इधर अभी फुल टर्न है यहाँ पे धीरे थोड़ा सर आराम से सर सेंटर यहाँ पे यहाँ पे अभी यहाँ पे सर यहाँ से सर यहाँ पे सर थैंक यू यहाँ ऐसी ऐसी आँख आएगी पता है एक यहाँ पर दूसरा थैंक यू सर यहाँ पे सरोज का नाम दूर हो जा पीछे हो जा पीछे हो जा यार पीछे हो जा बराबर लगी है सेंटर से कौन मध्य में एक सेकंड थोड़ा पीछे हो जाना दादा हाँ यहाँ अरे दादा सर यहाँ पीछे पीछे आना दादा अरे सर इधर बोलो यार यार पीछे आ जाओ आ रहा हूँ पीछे बार बार जाते हैं चलो चलो थैंक यू सर आपका सोलो इसका सोलो किया इसका
आपका Yeah. Kuji. Thank you. Cordially invite you for the music and trailer launch of the movie 2016 The End. Now, I would like to request the producer and the director of this movie. Hi, good afternoon. Thanks for coming. So, this is a, you can say, situational comedy movie, my second movie. So, I think we should start with the event. I have not much to say about this. Let's see the trailer. Yes, let the show begin. Thank you so much, Thank you. sir. Before starting the trailer, I would like to invite our chief guest, Mahima Chaudhary, to kindly come here. Please put your hands together for none other than Mahima Chaudhary. Hello. Would you like to say a few words? First of all, good afternoon. And yeah, I'd just like to wish all of you the very best. You're all very talented. I've seen Kiku and I've seen you. But y'all must be very, very nervous. But it's a great moment. I wish you the best. And Jaideep, I heard good things about you, so I'm sure this is going to be terrific. I wish you all the best. Iqbalji, I hope you make lots of money. Just share it with me. Yeah? Okay. Using the jukebox today, and soon Mandvi will be forwarding you the link. And this song is a treat for you. It will be releasing on 11th of this. So this was just a treat to welcome you all as a thanks for all of you to come. And Mandvi will send you the links. And let's go ahead with things. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to request the star cast to come on stage, please. I would like to request Divyendu Sharma to kindly come here to say a few words. Yes. Just a few. Before that, let me just call everyone on stage. Then one by one, we can just ask questions. I would request Mr. Kiku Sharda to kindly come here. Please put your hands together for Kiku Sharda. Priya Banerjee, and Harshad Chopra. Rahul Roy is also a part of this movie, but unfortunately he's not here. I would request Divyendu now to say a few words. Just tell us about the character. Well, guys, thank you first of all. आप लोग यहाँ पे आए to give your आपका कीमती समय हम लोगों को दिया. And I don't know, it's really surreal. हम लोगों ने जिस तरीके से start किया था film, and now the trailer is out today. I'm really stoked. And yeah, man, yeah, it's all good. Thank you guys. Thanks for coming. Character and all, yeah, it's a really fun character. बहुत मजा आया. The main thing is that whether you guys like the trailer or not, I hope you guys like the trailer. So, yeah. Seriously? Yeah. Feeling better. Yeah. I'm passing the. किकू सर, आप मूवी में है तो पता चल ही रहा है कि थिएटर में लाफ्टर गैस छूटने वाला है. But still, can you just tell us about your role? Role में most importantly I play son of a godman, and godmen have very important part of my life. आपको पता ही होगा. So no, the character is interesting, and I had a ball working with these people standing here, because I've been doing television for a while. मतलब I think 12-13 years I've been doing television. This world is new to me. Literally हम TV shoot करते हैं 10-15 दिन में, maximum 20 दिन में वो episode telecast हो जाता है. You know the response, you know what's happening. लेकिन ये जो है फिल्म बनती है, वक्त लगता है, फिर आपको देखने, फिर पता चलता है फाइनली हमने किया क्या है, एक पूरा का पूरा वो सीक्वेंस साथ में देखा जाता है. So this world is very new to me, but it's a cool world. You've been around, and yeah, and so I thoroughly enjoyed the process of the entire film being made, and I'm happy that I'm working with these guys. Yeah, thank you. Thank you so much. Now I would like to request Priya to say a few words.
Can you just tell us about your role, about your character? Definitely. Well, thank you everybody for being here today. And as Devendu and Kiku said, I hope you guys like the trailer. Well, my character, I'm playing a girl next door with a lot of dreams, lots of aspirations, and she wants to do something with her life. So once you watch the movie, you'll figure out, I think all our characters are very similar in their own way, but they all have their own aspirations and dreams from their lives. So it's a fun film, and it was a fun team. It was great working with Harshad, Devendu, Kiku. I mean, we got along so well. We didn't even realize how the time went by. We were chilling, enjoying, shooting, and it was literally one big party, and it was director pool. So it was a lot of fun, and now fingers crossed, hopefully you all like the movie as well, and the songs, and let's see. So yeah. Thank you so much, Priya. Now I would like to request Harshad to say a few words, and Harshad, I would just like to ask you, how's your leg? Broken. Yeah. Well, it's fine. I can stand now. With two people around. And I think सब लोगों ने सब बोल ही दिया. I hope ट्रेलर आप लोगों को पसंद आया हो. वरना बाहर नहीं जा पाओगे. अच्छी फिल्म है, कंप्लीट फिल्म है, फन फिल्म है, यंग फिल्म है, मैसेज है, रोमांस है, गाने बहुत अच्छे हैं. I think पता नहीं हमारी तरफ से पूरी कोशिश अच्छी रही है, सब कुछ हमें तो अच्छा लग रहा है. अब पता चलेगा होता क्या. एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा कि. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड अगेन ऑन पब्लिक. अरे फोटो सर थोड़ा शिफ्ट हो जाओ. हो जाएगा तो साइड हो. पानी सर सेंटर. सर सेंटर. क्या साथ में आ जाओ प्लीज. कम. अरे ये अरे थांबा ना रे. काय थँक्यू बोलता तुम्ही लोक यार. आम्ही काम नाही करत, तुम्हीच काम करा. Can we have the first question, please? First question is what you convey by your title. No, there's no significance about the word is going to end. There's a story about 4 guys, 4 friends who come to know that the world is going to end in 7 days. The story is about how would they like to spend, or how do they spend their last 7 days. So what kind of is the comedy or is it a different kind of? So जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी. सो इट्स नॉट लाइक डेलिबरेटली क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और स्लैपस्टिक नहीं है, लेकिन अपने आप में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ होती है, जो इंसिडेंट वो मौका ही ऐसा होता है कि चीज़ें फ़नी हो जाती हैं. सो इट्स क्वाइट फनी, बट जैसे आपने मुझे और शोज़ में करते हुए देखा है, जो तो उस तरीके की कॉमेडी नहीं है. कॉमेडी है लेकिन अलग है. फनी होती मतलब मैसेज उतना डीप भी है, उतना सॉलिड भी है. देवेंद्र जी, आपने काफी छोटी-छोटी फिल्में करके अभी अपने हाई लेवल तक पहुंचे. आपकी जर्नी कैसी रही है? अच्छी रही है. लाइक यू सेइंग कि अगर हाई लेवल तक पहुंच गए तो आई थिंक इट्स नाइस. कैमरा लुक. सो या आई एम हैप्पी. माइक थोड़ा ऊपर. अरे ऑडियो बढ़ाओ यार. ऑडियो बढ़ाओ. हाँ, आई एम रियली हैप्पी. जैसे इन्होंने कहा छोटी-छोटी फिल्में करके ऊपर पहुंच गए तो हाई लेवल. या हाई लेवल तो अच्छा लग रहा है. आई एम रियली हैप्पी. Tell us something about your character. कैरेक्टर का नाम है सनी, who's like a जुगाड़ू in the film. कोई भी नई स्कीम होती है, कुछ करना है, ये करते हैं, वो करते हैं, he's the guy, you know, जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है. He creates problem also and he solves it also with obviously his gang, and so yeah, he's more like a go-to guy. कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो he'll be the first one to come up with a solution or some तरकीब or something.
shot and in how many days? US. We took around 35 to 38 days to shoot this film. And it was shot in Moradabad, Western UP, Goa, Mumbai. Can we have the next? The next question, please. Harshad, hi, Ravi. There will be a bit of comparison with the film Shyama, which you were the first part of. Do you feel that there will be a similarity in the film, or does it people gonna? This is a very different theme here. Like we're saying 2016 the end. So this whole thing serves like a backdrop of the film. So how one fine day these four friends they get to know कि अच्छा भाई दुनिया खत्म होने वाली है, some asteroid gonna come and just finish off the earth. And ये लोग बताने की कोशिश करते हैं और कोई लोग इनकी बात पे यकीन नहीं करता है. So they are like whatever man, अगर कोई यकीन ही नहीं कर रहा है तो let's just go and start enjoying the life. 7 दिन बचे और उस 7 दिन में भी ये लोग कितना लाइफ एंजॉय कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते. It's the story of that. So पंचनामा that was बहुत अलग है. Story of the friends, so कहीं ना कहीं यार फ्रेंड्स तो हैं ही, वो तो हर फिल्म में ही रहेंगे, तो ये तो बिना फ्रेंड्स की फिल्म बनाना मुश्किल हो जाएगा. So but I think it's gonna be बिल्कुल कुछ सेम नहीं होने वाला. It's gonna be different. कीकू, आपसे सवाल हर्षद मैं पूछता हूँ आपसे. कीकू, बहुत सारे चैनल्स ने ऐसी घोषणा कर दी थी 2012 में दुनिया खत्म होने वाली, कहीं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से ली गई है? इसका जवाब आप देना चाहेंगे? इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली वो मुझे नहीं पता, लेकिन इंस्पायर होके बनने के बाद हमारे हाथ में आई. हमें जहाँ तक नहीं, लेकिन बात वो है ही नहीं. जैसे देवेंद्र ने भी बताया कि फिल्म इज अबाउट, हमें बस ये इन्फॉर्मेशन मिलती है फिल्म में कि ये एंड होने वाली है दुनिया. जैसे वो आप कोई और रेफरेंस लें तो उसमें एक्चुअली दे शो द वर्ल्ड एंडिंग और ये वो. पहले जब मैंने भी नाम सुना मुझे लगा कि यार कोई वर्ल्ड एंड, पर मुद्दा वो है ही नहीं. मुद्दा है कि भाई अगर दुनिया खत्म होने वाली है, आपके पास लिमिटेड वक्त है. वो 7 दिन है, 8 दिन है, 10 दिन है, 1 महीना पकड़ लो. अगर आपको कोई बता दे कि आपके पास इतना वक्त है, तो आपकी प्रायोरिटी सारी बदल जाएंगी, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी. आज हम 20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, 20 साल आगे वाला लोन ले रहे हैं, इंश्योरेंस वो कर रहे हैं जो हमें इतना लंबा ले जाएगा. तो अब अगर आपको बता दिया जाए कि आपके पास वक्त इतना है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप किससे मिलोगे, किससे बातें करोगे, किसके साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहोगे? What exactly will you do if you exactly know that this is the time that you have? So you want to enjoy yourself, you want to chill out with friends, you want to make sure that you give time to your family. What will you do is a big question mark जो इस फिल्म के द्वारा आंसर करने की कोशिश की गई है. हर्षद, बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स जो हैं इन दिनों फिल्मों में आ रहे हैं. सुशांत का एग्जाम्पल ताज़ा है, काफ़ी बड़े स्टार भी बन गए हैं अब तो वो. आपने भी हमेशा से चाहा है कि फिल्मों में कदम रखें और सिनेमा की दुनिया में भी अपना नाम बताएं. हाउ इज इट फील कि पहली फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है आपकी, और क्या क्या मशक्कत की यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने? हाँ भाई, मैं मतलब सोच रहा हूँ चालू कहाँ से करूँ, कदम कहाँ करूँ. ऑब्वियसली और यार पता है क्या होता है, पता नहीं है, मतलब दिस इज हाउ आई थिंक. आई एम एन एक्टर एंड आई लाइक टू, मतलब अच्छा काम, मन का काम करना बहुत ज़रूरी है, फिर प्लेटफॉर्म कोई भी हो. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने टीवी छोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फिल्म भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दोनों करूँ, मतलब कुछ आइडिया नहीं है. बस ये है कि मन का काम मिले, जहाँ भी मिले अच्छा मिले और करने में मज़ा आए, और मज़ा बहुत आए. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सबसे पहले यहाँ से चालू करना चाहिए था मुझे. Next question. लीडिंग लेडीज के बारे में कुछ Character के बारे में, as I said before, that she's just like every other girl. I think her aspirations, her dreams, like any girl, she wants to do big things. She wants to do things she loves, enjoys doing. So basically, that's a character. I'm pretty sure most of the girls will be able to relate to it, and most of the people will be able to relate to it. And it's her journey with her friends, and how she starts seeing life in a different way when she finds out the world's gonna come to an end, and her friends are always with her, and they're basically her support throughout. So she's very pampered, and yeah, it's her journey with her friends, and yeah. It was fun, actually. It was a lot of fun. The film. Yeah. It was, I was shooting in UP for the first time. And the experiences were amazing, very different. And so then we shot in Goa, other places. We went to different places, and
it was a lot of fun with everybody. Everyone got along really well. It's a great team, and yeah, that's it. Last two questions, please. कीकू, फिल्म में आपके जो पिता है वो गॉडमैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और आप उनके बेटे हैं आप, तो आपकी जो ये जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आई है? बिकॉज वी कैन सी सम एलिमेंट्स ऑफ पीके एंड ओ माय गॉड, और उसके साथ वी आल्सो हैव सम this thing going on from your past. Yes. So tell us something about this thing. नहीं, पर मैं वही बता रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट है जो ऐसी की ऐसी, इसमें कोई मेरे आने से या मेरे होने से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जैसी इनकी कहानी थी और जैसे लिखी हुई थी, हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज सपोज्ड टू बी द सन ऑफ अ गॉड मैन। लेकिन इंटरेस्टिंग वही है कि ये चारों दोस्त अपनी लाइफ का कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो फंसे हुए हैं, उसमें उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली माई फादर्स ऑल्सो इन द फिल्म इज़ अ वेरी वेरी रिच मैन, एंड उम्मीद की जाती है कि अपने फादर का ये जो बिजनेस अगर कह सकते हैं तो उसको बेटा आगे बढ़ाएगा, लेकिन बेटा वो करना नहीं चाह रहा है। तो उसको जो एक मौका मिलता है थ्रू द फैक्ट के दुनिया 7 दिन में ख़त्म होने वाली है, जिस बात से ये सब कन्विंस्ड हैं और होने वाली है, तो किस तरह वो इस चीज़ से बाहर निकलता है। बट या आई मीन देयर इज नो रेफरेंस टू एनीथिंग, इट्स जस्ट कोइंसिडेंस अबाउट एनी अदर गॉडमैन इन्वॉल्व्ड। कीकू, कपिल शर्मा का शो बहुत पॉपुलर है, आप उसमें हैं, तो आप उस शो में नजर आएंगे प्रमोट करते हुए? जी नहीं, आएंगे बहुत जल्द। Any more questions? Thank you so much Vijay, for all your questions, and thanks to the entire star cast and the director for all the answers. On behalf of Jaideep Chopra Productions, Iqbal Attarwala, Shaz Media Entertainment, Nagma Khan, me Tia Joshi signing off. Thank you so much for coming here and making this afternoon more beautiful. Thank you. Thank you everyone for coming. का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ये पता हो कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और 7 दिन बचते हैं, तो आप अपना वक्त कैसे गुजारेंगे। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं जो किस तरह से अपनी ज़िंदगी के लास्ट 7 डेज़, लेकिन आपको भी एक सोच में डाल देता है कि अगर हमारे पास 7 दिन बचें तो हम किस तरह से लाइफ रिमेनिंग 7 डेज़ कैसे बिताएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा आगे की प्लानिंग करते रहते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कि हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग समर वेकेशंस प्लान करते हैं, विंटर वेकेशंस, क्रिसमस, दिवाली पे ये करेंगे, ऑल ऑफ दैट हम लोग हमेशा आगे की सोचते हैं। और सबको ये पता चल जाए कि हम सब खत्म होने वाले हैं, तो किस तरह से दुनिया इधर उधर हो जाएगी और सब क्या करेंगे। आई थिंक सारी सड़कें उसी तरह से ट्रैफिक तो ज़रूर होगा, लेकिन सब काम पे नहीं जा रहे होंगे, सब लोग कहीं और जा रहे होंगे। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू डिसाइड कि लास्ट फ्यू डेज़ विल बी इन विच सिटी या विच स्टेट या विच हाउस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और ये एक ऑब्वियसली एक कॉमेडी टेक है। सीरियसली अगर इसको बनाया जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सो फन। सो जो ट्रेलर देखा इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। महिमा जी, अगर रियल लाइफ में ऐसा हो जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहती हो? नहीं है, जैसे सभी के लाइफ में तो इतनी सारी ड्रीम्स तमन्ना होती हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएं, कॉलेज जाएं, और फिर यू नो सो मेनी ड्रीम्स फॉर देम। और 7 डेज़ में अगर ख़त्म हो रहा है तो आई थिंक फैमिली के साथ ही बताएंगे ज़्यादातर लोग, और जो यंग बच्चे हैं वो तो अपने दोस्तों के साथ आई थिंक। महिमा जी, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस, क्योंकि लंबा समय हो गया है आपको बड़े पर्दे पर देखे। नहीं, जब होगा तो बुला लूंगी। जब महिमा जी ये पाकिस्तान एक्टर पे जो बात चल रही है आजकल जो चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगी? जो पाकिस्तान एक्टर्स हैं बहुत सेंसिटिव है। आई थिंक मेरी राय, सिर्फ मेरी राय लेना आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, बिकॉज आई तो फील कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में इतने सारे एक्टर्स हैं, तो लेट्स स्टिक विद देम। अगर ये इशू हो रहा है तो आई जस्ट फील, लेकिन जिनकी फिल्म बन चुकी है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अगर अभी आप थिएटर से हटा देते हैं, बिकॉज़ उन लोगों ने इतनी मेहनत की है। और पहले ऐसा कोई स्टैंड नहीं था हमारे देश में। आई थिंक सडनली जब पिक्चर रिलीज़ हो रही है तब ये स्टैंड लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, तो वहाँ मुझे दुख होता है। लेकिन आगे से अगर आप ऐसा रूल बनाएंगे तो आई थिंक एवरीबडी विल एडयर टू इट। लेकिन पहले रूल नहीं था और अब आप सडनली बोलें कि
बिकॉज फिल्में तो बहुत पहले बन जाती हैं ना, जब सभी कुछ ठीक था. बट पीपल आर सेंसिटिव. बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं, इतने यंग सोल्जर्स आप देखते हो और उनके बारे में सोचते हो कि सडनली ये घटना हो गई, वो जो ऑपरेशंस हुए, तो फिर एक तरह से जो हमारे भारतीय हैं उनको गुस्सा भी आता है. तो उनको लगता है हर जगह से मतलब किसी तरह से हम हर एक पाकिस्तानी के अगेंस्ट स्टैंड लिया जाए. तो दोनों तरफ से मैं सोचती हूँ. थैंक यू सो मच. एंजॉय करने. देखिए 2016 दी एंड में हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि 2016 में दुनिया ख़त्म होने वाली है. हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई बता दे कि इतना वक्त है और इतने वक्त में 2016 में दुनिया ख़त्म होने वाली है, आपके पास इतने दिन बाकी हैं, तो वो आखिरी कुछ दिन आप किस तरह गुजारना चाहेंगे? ये सवाल ज़रूरी है. एक बार खाली अपने जहन में ये सवाल को लाना ज़रूरी है जिससे आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हो. जैसे मेरा भी यही मानना है कि मैं हैप्पी गो लकी इंसान हूँ, अच्छी तरह मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, प्रेशर नहीं लेता. लेकिन हम जिस तरह प्लान करते रहते हैं ना, 20 साल आगे, 25 साल आगे, 30 साल आगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ तो हम यही सोच के लेते हैं कि दुनिया कितनी आगे, मतलब 20-25 साल बाद क्या होगा. तो हम इतना आगे का क्यों सोचते हैं? इतनी ज़रूरत नहीं है. आज के दिन में जिएँ, आज का दिन एंजॉय करने की कोशिश करें. एक फिल्म में मैंने कहीं सुना था या किसी ने कहा था कि टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है. मैं यही मान के आप सुबह जागो और ये सोचो कि टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो बस ये शुरुआत है और इन्जॉय करो विद एवरी पासिंग डे. कुछ अगर रियल लाइफ में मालूम पड़ जाए आपको कि 7 दिन में या 10 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप सोचे कि कर ले पाएंगे? सर अगर सच में पता चल जाए कि दुनिया में इतने ही दिन बाकी हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर मैं बहुत सोचा हूँ इसके बारे में और अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ. कभी कभी मुझे लगता है कि अगर सब ख़त्म ही होने वाला है तो मैं कोई भी चीज़ मतलब मेरा बड़ा मन था कि यार ये ले लूँ, वो ले लूँ, या फिर अगर मेरे पास मतलब आपके पास पैसे की तो कोई मायने रहे नहीं ना. वो जो पैसा आपके पास पड़ा है, जो गाड़ी आपके पास खड़ी है, जो चीज़ें आपके पास हैं, आपके पोजेशंस तो ख़त्म हो गए, क्योंकि 10 दिन में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. आपने अपनी लाइफ में बनाया क्या है? बनाए हैं अपने रिलेशनशिप्स, बनाए हैं अपने दोस्त हैं आपके, आपकी एक फैमिली है, इनके साथ आपने एक प्यार भरा रिलेशनशिप बनाया है. उसको कायम रखें. उसको आखिरी कुछ 10 दिन में मेरे ख्याल से जिस तरह कभी कभी जहन में आता है कि यार इट्स बीन अ वाइल कि आपने इस दोस्त से बात नहीं की, महीनों गुजर जाते हैं. ऑल्दो वो आपका बहुत ही करीबी और अच्छा दोस्त है, लेकिन आपका रूटीन ऐसा है, लाइफ ऐसी है कि आपकी रोज़ बातें नहीं होती. अगर ये 10 दिन बचे हैं तो आई एम श्योर कि मेरा सबसे पहला टारगेट यही होगा कि फैमिली जिसके साथ अगर मैं कम वक्त बिता पाया हूँ तो उसको मैं, मतलब ये तो 10 ही दिन है, बस बिता लो जितना बिताना है. उन दोस्तों को कांटेक्ट कर लो, उनसे बातें कर लो, उनको बता दो कि उनके मेरे जीवन में उनका कितना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. तो बस यही इन्हीं चीज़ों में आखिरी 10 दिन गुजार लेंगे. प्लीज अभी हमको विकेट करना है यहाँ पे. एक सवाल सर, आजकल जो मुद्दा चल रहा है, जो चल रही है, सलमान खान को बयान दिया है, ये मैं इसका जवाब देने नहीं वाला, ये रहने दीजिए. हाँ, आपका व्यूज क्या है? मतलब क्या बैन करना चाहिए पाकिस्तानी? नहीं सर, नहीं, कोई व्यूज़ नहीं है इसके बारे में, कमेंट नहीं करना चाहूँगा. कुछ तो बताइए, एक्टर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर ये अब छोड़िए ना, रहने दीजिए. थैंक यू. सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं. किसी को एक ओपिनियन चाहिए, किसी को दूसरा, तो ये इंडिविजुअल है. लेकिन खाली जिनकी फिल्में बन चुकी हैं उनके लिए अब खड़ा होना और बोलना, इतना गुस्सा निकालना, आई थिंक उनके लिए बहुत अनफेयर है. कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में ऐसा आपने कहा है कि मैं एक माँ का रोल ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिले. तो आई थिंक बच्चों की फिल्म और ज़्यादा बननी चाहिए. हम लोग ज़्यादातर बच्चों को हॉलीवुड फिल्म्स दिखाते हैं, जितनी भी मतलब एनिमेशन फिल्म्स होती हैं. आई थिंक इंडिया में टैलेंट है एनिमेशन फिल्म्स बनाने का, बच्चों की फिल्म्स बनाने का. आई थिंक और बननी चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अजय देवगन and cast, and which movie would you see first, Adela Mushkil or Shiva? थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो इस फिल्म को क्या विशेष देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? क्या 2016 दी एंड को बेस्ट विशेस देना चाहूँगी. बहुत स्वीट कास्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. ट्रेलर वाज वंडरफुल, वेरी वेरी enjoyable, and it's wonderful to see a comedy like this on something so serious. कोई आपको
आपको बोले कि दुनिया 7 दिन में खत्म होने वाली है और फिर आप उसको इस कॉमेडी सिचुएशन में देखो तो इट्स नाइस। तो आपके साथ अगर ऐसा होगा, अगर आपको पता चले नहीं, इट विल नॉट बी सो फनी, मुझे तो बहुत रोना आएगा। तो आप पहली चीज़ क्या करना चाहेंगे, मतलब आपको अगर पता चल गया? आई थिंक सबसे पहले तो लोग कोई भी काम करना छोड़ देंगे एंड जो भी टाइम होगा दिल वांट टू स्पेंड इट विद द फैमिली और सब एक साथ हो जाएंगे। आई थिंक यू नो इट बी लाइक पार्टी 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 जगह जगह। मैम इसके अलावा बहुत समय से आप बड़े पर्दे से दूर हैं, तो कोई ऐसा कोई प्लान है बड़े पर्दे पर आने का या फिर फिल्म प्रोड्यूस करने का, या फिर क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस जो है छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे पर वापस आ रही है? मैं प्लान नहीं कर सकती, मेरे पास जो आता है मैं हाँ ना करके कर दूँगी, बस प्लानिंग नहीं है। इसके अलावा सभी ने आपसे सवाल पूछा होगा कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के एक्टर्स को बैन किया जा रहा है उसके ऊपर आपको क्या? अभी बैन नहीं हुए हैं एक्टर्स पाकिस्तान के, बट आफ्टर जब सिचुएशन ऐसे इरप्ट होती है ना तो लोगों को गुस्सा बहुत आता है। मतलब ये तो क्रिकेट मैच में भी आता था, हम इंग्लैंड से हार जाए लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए, तो ये तो बहुत पुरानी दुश्मनी है हमारी, तो ये होती रहती है। लेकिन जो फिल्म बन चुकी है और वो रिलीज़ पे है उनके लिए बुरा लगता है, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के लिए कि फिल्म को ठीक से प्रदर्शित नहीं करने दे रहे हैं, तो वहाँ पे दुख होता है। बट अब कोई भी अगर स्टैंड ले, गवर्नमेंट स्टैंड ले कि एक्टर्स भी नहीं आएंगे क्योंकि सिचुएशन टेंस है और हमारे देश के लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, वो लोग ऐसे मतलब फिर तो कोई लेगा ही नहीं खुद भी, मतलब ऐसा कोई बैन की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक ये सिचुएशन देख के आई थिंक कोई भी लेगा नहीं। इसके अलावा सलमान खान और ओमपुरी जी ने जो कमेंट किया था उस बात पर मैंने सुना नहीं, क्या कमेंट किया था? सलमान जी ने कहा था कि वो कलाकार है और तो कलाकार को वीज़ा देकर एंट्री दी जाती है इंडिया में, तो वो कुछ गलत नहीं है, ऐसा बोला था। और ओमपुरी जी ने बोला था कि अगर मरना ही है तो वहाँ पर जाके क्यों लड़ते हैं। तो एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहिए इस पर, क्या राय होगी? बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसमें ज़रूरी नहीं है आपकी कोई राय हो, बट मैं दोनों तरफ को समझ सकती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो फिल्म बन गई है और रिलीज़ होने पे है, आई थिंक उसके साथ अभी ये नाइंसाफ़ी होगी अगर आप कहें, क्योंकि जब कास्टिंग हुई थी तब तो सब ठीक था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने किसी का दिल दुखाया है। बट येस, जब हमारे लोग देखते हैं उनके हमारे अपने सोल्जर्स को, यंग सोल्जर्स को बेरहमी से जब ऐसे मार दिया जाता है तो आई थिंक गुस्सा आता है, सभी पे आता है। मतलब ऐसे तो हम हमेशा पाकिस्तानीज़ हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं। मैं जब न्यूयॉर्क में होती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स जो है जो काम कर रहे हैं पाकिस्तानीज़ होते हैं, तो हम उन्हें अपने ही कहते हैं। बट जब देश की बात आती है, सोल्जर्स की बात आती है, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो जाता है, तब गुस्सा आता है। ओके, थैंक यू सो मच। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.